So we have seen all the elementary basic types of matrices and operation of matrices. Today we are going to solve NCERT exercise 3.1 and its problem. So first problem says that in the matrix A we have given 2, 5, 19, 7, minus 7, 35, minus 2, minus 5 by 2, 12, root 3, 1, minus 5, 17. Write the order of the matrix. Number 2, the number of elements. Number 3, write the elements A13, A21, A20, A33, A24 and A23. So as we know that the order of the matrix is M into N, where M denotes the number of rows and N denotes the number of columns. And all the horizontal lines are called rows and all vertical lines are called columns. So in this we have 3 types of 3 rows and 4 columns. Therefore, in the given matrix, the number of row is equal to 3 and the number of column is equal to 4. So order of the matrix is 3 into 4. M into N, that is row into column, 3 into 4. Now what are the number of elements? The number of elements is equal to M into N, that is number of row into number of column, or easily we can count them. हम इसको काउंट भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे काउंट कितना हो जाएगा? 12 मेंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3 into 4 is equal to 12. हमारा जनरल फॉर्मूला होता है M into N. So 3 into 4 is equal to 12. Now we have to write the elements of A13, that is first row, third column. First row and third column is 19. So similar way we can write it as A13 is the element in the first row and the third column is equal to 19. A21 the element of second row and first column. Second row and first column is 35, so it is 35. In similar way, A33 is the element in the third row and the third column is minus 5. A24 the element in the second row and the fourth column is equal to 1 2. Similar, A23 is the element in the second row and the third column is 5 by 2. The second question says that if a matrix has 24 elements, what are the possible order of it can have? What if it has 13 elements? मतलब एक मैट्रिक्स का 24 एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? और अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 13 एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में तो इसके ऑर्डर्स क्या होंगे? So as we know that the matrix of the order is M into N, where M N is elements. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? M into N होते हैं. 24 दिए हुए हैं तो 24 का हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे. तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं? 1 into 24, 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6, 6 into 4, 8 into 3, 12 into 2, 24 into 1. So इतने हमारे 8 possibilities हैं. So what are the possible orders? They are the possible orders. इतने सारे हमारे 8 पॉसिबल ऑर्डर्स है जो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस मैट्रिक्स के लिए 24 एलिमेंट्स के लिए. सिमिलर फॉर 13 एलिमेंट्स के लिए हम लोग किस तरह से लिखते हैं? 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 into 13 या फिर 13 into 1. सो यहाँ पे 2 पॉसिबल मैट्रिक्स हमारा यहाँ पे बन सकता है 13 एलिमेंट्स के लिए. क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा. क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव एंड व्हाट इज द इट हैव 5 एलिमेंट्स. तो सिमिलर वे में हम लोग लिख सकते हैं 18, जैसे अभी ऊपर के प्रॉब्लम में हम लोग डिस्कस किया. 18 के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 into 18, 2 into 9, 3 into 6, 18 into 1, 9 into 2, 6 into 3. So we have 6 possible matrices that can be formed by a matrix of elements 18. Now for 5 is again a prime number, so the 5 can be written as 1 into 5 or 5 into 1. So there are 2 possible matrices which can have the order 1 into 5 or 5 into 1 having 5 elements.
नाउ नंबर फोर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कंस्ट्रक्ट एक मैट्रिक्स हमको बनाना है 2 इंटू टू का, दैट मीन्स नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है यहाँ पे 2 है, in which a is equal to aij whose elements are given by first केस में aij is equal to I plus j square divided by 2, second केस में aij is equal to I divided by j, number 3 aij is equal to I plus 2j square divided by 2। सो चूंकि मैट्रिक्स जो है हमारा 2 इंटू टू का मैट्रिक्स है, तो इसमें इसको मैट्रिक्स को हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इस तरह से a11 a12 a21 a22, ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो सबसे पहले ये सारे एलिमेंट्स को हम लोग को फाइंड करना है। ये हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट जो है वो i को रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो को, और सेकंड जो है वो j को रिप्रेजेंट करता है। तो a11 और aij का हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है i प्लस j का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो a11 दैट मीन्स i के जगह पे 1, j के जगह पे 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। सिमिलर वे a12 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 9 बाई 2। a21 2 plus 1 divided by 2, that is 9 by 2, a22 2 plus 2 square divided by 2, that is 16 by 2 is equal to 8। तो हम लोग मैट्रिक्स के वैल्यू को सब जगह वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा मैट्रिक्स का वैल्यू हो जाएगा a is equal to 2 9 by 2 9 by 2 8। ये हमारा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। सिमिलर वे में क्योंकि ये मैट्रिक्स तो हमारा 2 इंटू टू का ही है, यहाँ पे a i j का वैल्यू दिया हुआ है i by j, सो a11 का वैल्यू हो जाएगा 1 by 1 इज इक्वल टू 1, a12 का वैल्यू हो जाएगा 1 by 2 इज इक्वल टू 1 by 2, a21 यहाँ पे ऊपर में 2 नीचे में 1, दैट इज 2 by 1 इज इक्वल टू 2, मतलब i के जगह पे ये वैल्यू है और j के जगह पे ये वैल्यू है, तो 2 by 1 इज इक्वल टू 2, a22 हो जाएगा 2 by 2 इज इक्वल टू 1। जो मेरा फॉर्मूला दिया उसी फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू पुट कर दिए। फिर यहाँ पे जो मैट्रिक्स हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया था, इसी मैट्रिक्स के जगह पे सभी जगह करस्पॉन्डिंग जगह पे सारे एलिमेंट्स को पुट कर देंगे, सो दैट इज 1 1 by 2 2 and 1। This is the construction of matrix having aij is equal to I by j। Now next, for aij is equal to I plus 2j square divided by 2, तो सिमिलर वे में हम लोग सबसे पहले a11 कैलकुलेट करेंगे। 1 प्लस यहाँ पे 1 i के जगह 1, j के जगह पे 1 पुट करना है, तो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 दैट इज 2, 1 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 9 बाई 2। a12 दैट मीन्स i के जगह पे 1, j के जगह पे 2, 2 इंटू 2 इज 4, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बाई 2। सिमिलर वे a21 इज इक्वल टू 16 बाई 2 इज इक्वल टू 8, a22 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 36 बाई 2 इज इक्वल टू 18। तो वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो a आ गया कंस्ट्रक्ट 9 बाई 2 25 बाई 2 8 एंड 18। करस्पॉन्डिंग जगह पे सारे एलिमेंट्स के वैल्यू को पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कंस्ट्रक्ट द सेम क्वेश्चन है अलग वे में। Construct the 3 into 4 matrix whose elements are given by first में aij is equal to half of mod of minus 3i plus j and number 2 aij is equal to 2i minus j। तो सबसे पहले हम लोग 3 into 4 का मैट्रिक्स लेते हैं। 3 into 4 मतलब नंबर ऑफ रो हमारे 3 होंगे, नंबर ऑफ कॉलम 4, तो यहाँ पर हमारा 3 रो है और 4 कॉलम है। सो a11 a12 a31 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34। एक एक करके हमारा वैल्यू फाइंड करेंगे। aij का वैल्यू दिया हुआ है 1 by 2 मॉड ऑफ 3i माइनस j। मॉड कहने का मतलब किसी भी क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी का भी मॉड का वैल्यू जो क्वांटिटी होता है वो x होता है, और नेगेटिव क्वांटिटी का भी अगर हम लोग इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो इसका वैल्यू x होता है। सो a11 i के जगह पे 1 -3 प्लस 1 दैट इज -2 का मॉड 2, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, तो 1 by 2 into 2 is equal to 1। Similarly a12 1 by 2 -3 plus 2 that is 1 by 2 minus 1 that is 1 by 2 into 1 1 by 2। एक एक करके सारे वैल्यूज को हम लोग को कैलकुलेट करना है। a130 a14 1 by 2 a21 1 by 2 minus 6 plus 1 that is 1 by 2 minus 5 that is 5 by 2। उस तरह से a22 i के जगह पे 2 j के जगह पे 2 वैल्यू पुट करेंगे, -4 आ रहा है, -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4 by 2 is equal to 2। उस तरह से a23 i के जगह पे
2j के जगह पे 3 वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ -3 का मॉड 3/2 A24 इसका वैल्यू 1 A31 4 A32 7/2 A33 3 A34 5/2। तो इस तरह से सारे जो वैल्यू हमारे आए इसको मैट्रिक्स के वैल्यू पे हम सब जगह करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में पुट कर देंगे तो ये हमारा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है इसका सेम है 3 into 4 का मैट्रिक्स है तो सारे वैल्यूज हमको कैलकुलेट करने हैं लेकिन यहाँ पे हमारा रिलेशन दिया हुआ है एलिमेंट्स के लिए aij is equal to 2i minus j। तो a11 that means I is equal to 1 j is equal to 1 तो 2 minus 1 is equal to 1 a12 2 minus 2 is equal to 0 a13 2 minus 3 is equal to -1 a14 is equal to 2 minus 4 is equal to -2 a21 4 minus 1 is equal to 3 a22 4 minus 2 is equal to 2 a23 4 minus 3 is equal to 1 a24 4 minus 4 is equal to 0 a31 6 minus 1 is equal to 5 a32 6 minus 2 is equal to 4 a33 6 minus 3 is equal to 3 a34 6 minus 4 is equal to 2। सो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स की जगह पे क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स में इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 0 -1 -2 3 2 1 0 4 5 3 2। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। सो ये हमारा प्रॉपर्टीज है जब हम लोग किसी भी दो मैट्रिक्स को इक्वेट करते हैं या कंपेयर करते हैं इक्वल मैट्रिक्स लेते हैं तो इक्वल मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी कहता है कि दोनों के मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए और ऑर्डर सेम होने के साथ साथ corresponding elements जो हैं वो सेम होते हैं। तो सिंस बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल सो देयर corresponding elements आर इक्वल। corresponding elements कहने का मतलब इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट होगा इसके फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट में जो एलिमेंट होगा वो इसके बराबर होगा। फिर ये 3 यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में है यहाँ पे ये इसके बराबर होगा। फिर ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा corresponding के 5 जो है 5 के बराबर होगा। तो जो हमारा वैल्यूज हमको फाइंड करना है उसमें करना है तो y इज इक्वल टू 4 हो गया z इज इक्वल टू 3 हो गया और x इज इक्वल टू 1। तो हमको यही फाइंड करना है x y z का तो x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 4 z इज इक्वल टू 3। सिमिलर वे में इसको हमको सॉल्व करना है। सो x प्लस y इज इक्वल टू 6 फर्स्ट इक्वेशन 2 इज इक्वल टू 2 इससे कोई हमारा वैल्यू फाइंड नहीं होगा। 5 प्लस z इज इक्वल टू 5 5 plus z is equal to 5 and xy is equal to 8। तो 5 plus z is equal to 5 यहाँ से z हमारा निकल जाएगा z यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ x plus y is equal to 6 दिया हुआ है तो हमको x minus y निकालना होगा तभी हम x और y को सॉल्व कर सकते हैं। सो फॉर्मूला हमारा होता है x minus y का स्क्वायर इज इक्वल टू x plus y का होल स्क्वायर माइनस 4xy। सो x minus y इज इक्वल टू रूट ओवर x plus y का होल स्क्वायर माइनस 4xy। x plus y का वैल्यू दिया हुआ है 6 का स्क्वायर 36 और 4 इंटू एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है 8 तो यहाँ पे 8 पुट कर दिया तो ये आ गया। दोनों को सॉल्व करने से 4 तो इसका वैल्यू हो गया 4 का प्लस -2। दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे और कंसिडर करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पे हमारा निकल जाएगा। काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। सो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 9 देन x प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 5 एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 7। तो ये हमारा 3 इक्वेशन आ गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस जेड फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 x प्लस जेड का जो वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा y निकल जाएगा। तो y इसका वैल्यू है 5 तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 9 तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 है तो यहाँ पे अगर y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे यहाँ पे तो z का वैल्यू निकल जाएगा तो z इज इक्वल टू 7 माइनस वाई 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। अब इक्वेशन नंबर 2 में x z निकल गया तो x का वैल्यू निकल जाएगा x हो जाएगा मेरा 5 माइनस जेड सो 5 माइनस जेड दैट इज 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 सो x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 4 z इज इक्वल टू 3। Similar way, question 7 says that find the values of a, b, c, d from the equation a minus b, 2a plus c, 2a minus b, 3c plus d, -1, 5, 0, 13. So since both the matrices are equal, same order, so corresponding elements are equal.
So AB is equal to -1. So first equation. 2A plus C is equal to 5. Second equation. 2A minus B is equal to 0 is equal to third equation. 2A minus A minus B is equal to -1, equation 1. 2A minus B is equal to 0 is second equation. 2A plus C is equal to 5 is equal to equation number 3. And 3C plus D is equal to 13, equation number 4. Now from equation 4 D is equal to, तो इक्वेशन 4 पहले सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम लोग 2 - 1 करेंगे, इस दोनों से सॉल्व करेंगे तो A और B निकल जाएगा. सो 2A minus B 0 और A minus B, तो B और B कैंसिल हो गया. 2A minus A is equal to A, so A is equal to 1. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 में मेरा A और C का वैल्यू है, तो यहाँ से C निकल जाएगा. A के जगह पे हम लोग 1 पुट कर देंगे तो 5 - 2 is equal to 3. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 A minus B is equal to -B, तो B का वैल्यू हम लोग पुट कर, A का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो A plus 1 that is 1 plus 1 is equal to 2. सिमिलर इक्वेशन नंबर 4 में हम लोग C का वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट कर गए हैं यहाँ पे 3 पुट कर देंगे. 13 - 3C 13 - 9 is equal to 4. सो ये इक्वेशन यहाँ पे निकल गया. तो A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to 3 and D is equal to 4. Question number 8 says that if A is equal to Aij m into n is a square matrix, then तो हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होते हैं, तो ये वाला प्रॉपर्टी जो है ये हमारा ऑब्जेक्टिव के लिए ये सही होगा. क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर मैट्रिक्स इक्वल. तो मैट्रिक्स के इक्वल कब होते हैं, जब क्रॉसवाइंग एलिमेंट दोनों के सेम होते हैं. तो ये 3x + 7 0 के बराबर होगा. y + 2 y - 2 is equal to 5 के बराबर होगा. y + 1 is equal to 8 होगा और 2 - 3x is equal to 4 के बराबर. तो हम इसमें ऑब्जेक्टिव्स में है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व कर रहे हैं तो 3x + 7 is equal to 0 पहला इक्वेशन, तो x is equal to -7/3 आया. y - 2 is equal to 5 तो सॉल्व किए तो y is equal to 7 आया. यहाँ देख रहे हैं y - 2 is equal to 5, तो y is equal to 7. देन अगेन y + 1 is equal to 8 आया, तो यहाँ से y का वैल्यू फिर 7 आया. फिर 2 - 3x - 4 2x - 3x is equal to 4, तो यहाँ से x का वैल्यू -2. तो यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यू आ रहे हैं, एक -7/3 भी आ रहा है 2/3. तो दिए हुए वैल्यू से हमारा निकालना पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर मेरा बी होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड. क्वेश्चन नंबर 10 सेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है. The number of all possible matrices of order 3 into 3 with the each entry is equal to 0, 1. मतलब किसी भी एंट्रीज में 0 या 1 हो तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितने होंगे. सो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ 3 into 3 मैट्रिक्स, अगर 3 into 3 मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे. हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है m into n, दैट इज रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9. आप उसमें हर जगह पे पहली बात 0 लिख सकते हैं, कभी 1 लिख सकते हैं, फिर 0 1 के कॉम्बिनेशन को लिख सकते हैं. तो इस तरह के टोटल कॉम्बिनेशन मैट्रिसेस हो जाएंगे, क्योंकि नंबर क्या चीज रिपीट हो रहा है वो 2. कितनी बार रिपीट हो रहा है 9 टाइम्स, तो 2 to the power 9 एंड 2 to the power 9 is equal to 512. ये कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी है, सॉरी परमुटेशन का प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी से हम लोग इसको फाइंड किए. सो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे और एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे.